Dear students, let us study our next topic, position of signal, concept of shielding and de-shielding. In the earlier video, we discussed that number of signals in a PMR spectrum tell us how many types of protons are present in a molecule. One signal mean one type of proton, two signals mean two type of protons, three signals mean three type of protons, and so on. So number of signals tell us how many types of protons are present in a molecule. Similarly, it has been said that position of signal आया कौन सी position पे, where the proton absorbed. Position of signal tell us what kind of protons are there. सिग्नल की जो पोजीशन है, किस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे हमारे प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब किया, वो हमें बताता कि जो हमारा प्रोटॉन है वो कौन से एनवायरनमेंट में है. कौन से एनवायरनमेंट में मतलब whether it is aliphatic proton, whether it is aromatic proton, or it is astellinic proton, or it is lying adjacent to heteroatom like oxygen, hydrogen, sulfur, etc. So we have two important points here. One is number of signals mean how many types of proton. Position of signal mean what kind of protons are there. That is, in which environment they are. Now, when we place a molecule in magnetic field to study its PMR spectrum, जब हम किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके PMR स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए, what happens? The applied field causes circulation of electrons surrounding the proton. जो अप्लाइड फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन करवाता which are surrounding the proton. Those electrons may be sigma electrons, may be pi electrons, depending upon type of molecule. इलेक्ट्रॉन्स की जो सर्कुलेशन होती उससे एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, because electrons are charged particle, so the circulation of electron produces a secondary magnetic field which is called as induced field. It has been found that this induced field may either oppose or reinforce the applied field. ये जो induced field है ये अप्लाइड फील्ड को रीइंफोर्स भी कर सकता और अपोज भी कर सकता. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें बच्चे, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन दिखाया हुआ है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, these are only, this diagram is only for illustration purpose, only for illustration. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो सेकेंडरी फील्ड इंड्यूस करते, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड व्हिच आर सराउंडिंग गिवन प्रोटॉन. सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी फील्ड इंड्यूस करते, दैट फील्ड opposes the applied field. This is very important. Sigma electrons induced field opposes the applied field. Shielding, इससे shielding होती है. मैं अभी shielding concept पे आता हूँ. पहले हम उन एग्जांपल्स को देख लेते कि where the induced field opposes and where it reinforces. On the other hand, circulation of electron, particularly of pi, generate induced field which may either oppose or reinforce. सिग्मा में हमने क्या देखा बच्चे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट करते दैट ऑलवेज अपोज, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे में अपोज और दे में reinforce the applied field depending upon their position, their location with respect to the proton. For example, circulation of pi electron in benzene derivatives. बेंजीन खुद या उसका कोई भी डेरिवेटिव आप लिखे चले तो जो बेंजीन के कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन है उसके ऊपर
पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा, हाउ दे विल इन्फ्लुएंस द अप्लाइड फील्ड। तो कहता है पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन डेरिवेटिव प्रोड्यूस इंड्यूस्ड फील्ड व्हिच रीइंफोर्स द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड को वो रीइंफोर्स, मतलब उसको ताकत प्रदान करेंगे, उसमें एड अप हो जाएंगे। रीइंफोर्स करने का मतलब है उसमें एड अप हो जाएंगे, उसकी ताकत को बढ़ाएंगे। जैसे हमने 1.1 लगाया, तो सपोज करें रीइंफोर्समेंट कितने की दे दी उसने, 0.1 की, तो 1.2 हो गया। मतलब हमने 1.1 लगाया तो प्रोटॉन के ऊपर कितना पड़ा, 1.2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रीइंफोर्स। So this is diagrammatic representation of illustration purpose कि how the induced field generated by the circulation of pi electron reinforce the applied field. Similarly, pi electrons of CHO bond or carbon-carbon double bond, they also reinforce. लेकिन एक important यहाँ पे देखिए बच्चे, एस्टिलीन, ये एस्टिलीन दिखाया हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एस्टिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट करते, दैट अपोज द अप्लाइड फील्ड। वो अप्लाइड फील्ड को क्या करता है बच्चे, अपोज करता है, दैट अपोजेस द अप्लाइड। पाई इलेक्ट्रॉन्स में रीइंफोर्स, में अपोज, एस्टिलीन में अपोज करते, बेंजीन में या कार्बोनाइल कंपाउंड्स में या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन्स में क्या करते बच्चे, रीइंफोर्स। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो शील्डिंग और डी शील्डिंग का हमने समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसकी वजह से पोजीशन ऑफ सिग्नल डिसाइड होती है। एब्जॉर्प्शन किस अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे होगा, एट व्हाट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ द एब्जॉर्प्शन विल अकर, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस कंसेप्ट, दैट इज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग हम किसको कहेंगे बच्चे, शील्डिंग सिंपल है कि अगर इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है, इफ द इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द अप्लाइड फील्ड, साफ है कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो प्रोटॉन को शील्ड कर रहा है फ्रॉम द अप्लाइड फील्ड, इसको हम शील्डिंग कहते हैं। सो व्हेन इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द अप्लाइड फील्ड, द एक्चुअल फील्ड एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन डिक्रीजेस एंड द प्रोटॉन इज सेड टू बी शील्डेड। तो हम कहेंगे प्रोटॉन की क्या हुई, शील्डिंग। हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बच्चे, कि सपोज करें, एक चीज बच्चे याद रखें कि नॉर्मली जो हमारे प्रोटॉन है वो 1.1 टेस्ला पे ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन हम 16 मिलियन हर्ट्ज ऑफ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी उस पे अप्लाई करते हैं नॉर्मली 1.1। अब इस केस में क्या हुआ, शील्डिंग के केस में क्या हुआ, प्रोटॉन ने एब्जॉर्व करना 1.1 पे, हमने 1.1 लगा दिया, लेकिन बीच में जो सर्कुलेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसने प्रोटॉन को शील्ड कर दिया अप्लाइड फील्ड से। तो हमारे प्रोटॉन को 1.1 तो मिला ही नहीं बचे, उसको से 1.0 मिला, एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन 1.1 पे होना है, मैं 1.1 लगा के बैठा हूं, एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो सर्कुलेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जो अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रहा है, वो 1.1 हमारे प्रोटॉन तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अकॉर्डिंगली जितना हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड किया उतना हमें अप्लाइड फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जैसे मैं कह रहा हूं कि सपोज करे 1.1 दे रहा हूं, तो यहाँ 1 पहुंच रहा है, मतलब 0.1 वो हमारा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है वो कम कर रहा है, 0.1 में बढ़ा दूंगा, यानी कि मैं 1.2 लगा दूंगा। 1.2 लगाया, 0.1 इन्होंने कम किया, प्रोटॉन पे कितना अप्लाइड फील्ड आया बच्चे, 1.1। मतलब इफेक्टिव फील्ड कितना आया, अप्लाइड तो 1.2 है, इफेक्टिव कितना उसके ऊपर आया, 1.1, और एब्जॉर्प्शन हो गया। तो याद रखें बच्चे, जब सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड फील्ड जो जनरेट करता है, अगर वो अप्लाइड फील्ड को क्या करे, अपोज करे, तो उस केस में इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्प्शन को लेने के लिए हमें अप्लाइड फील्ड को बढ़ाना पड़ता है। वी हैव टू इंक्रीज द अप्लाइड फील्ड, ठीक है बच्चे, एंड दिस शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड, इससे जो एब्जॉर्प्शन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, अप फील्ड। सो इन ऑर्डर टू गेट एन एब्जॉर्प्शन सिग्नल from the shielded proton, the applied field has to be increased somewhat
to reach same effective field strength at which absorption occurs, and thus shielding shift absorption upfield. मतलब 1.1 पे हमारे प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब करना था टेस्ला पे, 1.1 पे के बजाय उसने सिग्नल कहाँ कितना दिया, 1.2 पे. दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल. एक्चुअल में वो 1.2 पे देगा या 1.11 पे देगा, वो डिपेंड करेगा कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना अपोज कर रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट. इलुस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको समझा दिया. पॉइंट पे अगर इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड को रीइंफोर्स करे, रीइंफोर्स उसको ताकत प्रदान करे. जैसे बच्चे देखें, प्रोटॉन एब्जॉर्ब करना 1.1 पे, ये मैंने 1.1 लगा दिया, बीच में जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो रीइंफोर्स कर रहा है. रीइंफोर्स मतलब मैंने 1.1 लगाया, 0.1 इसने रीइंफोर्स किया. एग्जांपल में बात कर रहा हूँ 0.1, तो इफेक्टिव फील्ड प्रोटॉन के ऊपर कितना बड़ा बच्चे, 1.2. बट इसने तो एब्जॉर्ब करना 1.1 पे, इसने एब्जॉर्ब करना 1.1 पे. तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अप्लाइड फील्ड को कम करना पड़ेगा. जैसे इसको 1.1 देने के लिए मुझे 1.0 करना पड़ेगा. 0.1 किसने रीइंफोर्स किया, इंड्यूस्ड फील्ड ने. 1 प्लस 0.1 कितना हो गया, 1.1 एब्जॉर्प्शन भी लगता है. यानी कि मुझे अप्लाइड फील्ड को इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ में पहुंचने के लिए अप्लाइड फील्ड को कम करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच द इंड्यूस्ड फील्ड हैज रीइंफोर्स्ड द अप्लाइड फील्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस में जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो ई शील्डिंग कर रहा है प्रोटॉन. प्रोटॉन की क्या कर रहा है बच्चे, ई शील्डिंग. शील्डिंग नहीं कर रहा, उसको बचा नहीं रहा, उस पे और फील्ड डाल रहा है. कुछ फील्ड अप्लाइड फील्ड का, कुछ अपना. शील्डिंग में क्या होता है, रोकना. डी शील्डिंग में क्या होता है, एक्सपोज करना. ये बात समझ. इस केस में क्या हुई बच्चे, डी शील्डिंग. तो हियर वी से when induced field reinforces the applied field, the actual field acting on the proton increases and the proton is said to be de-shielded. Actual field उस पर बढ़ जाएगा जब induced field reinforce करेगा किसको बच्चे, applied field को. Obviously, to get absorption signal from de-shielded proton, de-shielded proton से signal लेने के लिए applied field is to be decreased somewhat, उसको कम करना पड़ेगा मुझे, so as to achieve same effective field strength at which absorption occurs. जिस पोजीशन पे एब्जॉर्प्शन होनी, उस पोजीशन पे एब्जॉर्प्शन को लेने के लिए मुझे अप्लाइड फील्ड को उतना ही कम करना पड़ेगा, कितना, जितना इंड्यूस्ड फील्ड क्या कर रहा है बच्चे, रीइंफोर्स. इतना वो क्या कर रहा है, रीइंफोर्स. जैसे इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है 1.1, इसने एब्जॉर्ब करना 1.1 पे, 0.1 इंड्यूस्ड फील्ड दे रहा है, तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 1. 1.1 नहीं लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा बच्चे, 1. मतलब मुझे अप्लाइड फील्ड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. सो डी शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड. तो आपने क्या देखा बच्चे, शील्डिंग अगर होगी तो एब्जॉर्प्शन अप फील्ड आएगा, और डी शील्डिंग होगी एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड आएगा. तो देखिए बच्चे, एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो किस्म के प्रोटॉन होंगे, एक में शील्डिंग हो रही है, एक में डी शील्डिंग, तो एक का सिग्नल अप फील्ड आएगा, एक का सिग्नल डाउन फील्ड. तो हमें पता चल जाएगा इसका अप फील्ड आएगा, वो क्या हो रहा है बच्चे, वो शील्ड हो रहा है. जिसका डाउन फील्ड आया वो क्या हो रहा है, डी शील्ड. फॉर एग्जांपल, इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द अप्लाइड फील्ड. जो इंड्यूस्ड फील्ड है अपोज करता है अप्लाइड फील्ड इन केस ऑफ एस्टिलीन. एस्टिलीन के केस में हमने पढ़ा, तो एस्टिलीन के केस में, एस्टिलीन के केस में क्या होगा बच्चे, अपोज कर रहा है तो सिग्नल जो एब्जॉर्प्शन है वो अप फील्ड होगी. Whereas बेंजीन में क्या करता है बच्चे, रीइंफोर्स करता है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, डाउन फील्ड. Therefore, acetylenic proton are shielded and absorb up field, whereas benzene proton are de-shielded and absorb down. Therefore, हमने यहाँ से illustrate कर दिया कि position of signal हम बताएगा what type of protons are they are. What type of, जैसे acetylenic proton है, shield हो रहा है, up field absorb कर रहा है. बेंजीन का प्रोटॉन है, ई शील्ड हो रहा है, डाउन फील्ड अब्सॉर्ब कर रहा है. टाइप ऑफ प्रोटॉन किससे पता चला बच्चे, फ्रॉम पोजीशन ऑफ सिग्नल, दैट इज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग. होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. थैंक यू.